Finally, the wait is over, guys. The National Testing Agency has released the official syllabus for the upcoming CUET exam for undergraduates 2022. अभी कुछ ही घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आई है एंड हियर आई एम विद दिस वेरी यूजफुल वीडियो जिसमें कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नॉट हैव एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय एवरीवन, दिस इज गीतांजलि एंड वेलकम टू एजुकेशन विटामिन। लेट अस गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन वन बाय वन। सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट conduct of the common universities entrance exam CUET UG meaning undergraduate 2022 for the undergraduate programs in central universities for the academic session 2022 to 23. This is the official notification title. The National Testing Agency NTA is established by Ministry of Education MOE. ये सब इसमें एनटीए के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे काम की इंफॉर्मेशन पे। The National Testing Agency has been entrusted with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, the NTA would be conducting the CUET for all the central universities for the academic session 2022 to 23. CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities across the country. इसका क्या मतलब है? That means कि CUET के थ्रू आप इंडिया में किसी भी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इट इज अ सिंगल विंडो दैट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। इसमें जो भी आप स्कोर करेंगे दैट वुड बी एप्लीकेबल, दैट वुड बी कंसिडरेबल in all the centralized universities across India. The CUET exam would be conducted in a computer-based test mode. Computerized test होगा, ये हमें already पता है. The aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to undergraduate programs of the desired central universities for admission into the undergraduate programs. देखो कई बार क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया होता है एडमिशन का वो अलग होता है। सो दे आर एडवाइजिंग यू कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप प्लीज उसका जो एडमिशन का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। After that it says the details of the programs offered by the central universities is being made available on their respective websites। तो कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट लिया जाएगा वो उनकी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे अवेलेबल बहुत ही जल्द होने वाला है। Now a very important information, the online application form for the undergraduate programs will open from 2nd April 2022. So you can start applying for the CUET from the 2nd of April 2022 onwards. The link for the same will be made available on the official website cuet.samarth.ac.in। तो जी हाँ, ये है वो वेबसाइट जहां से आपको अप्लाई करना है। Please note it down. This is the website from which you have to apply for the CUET exam starting the 2nd of April. Candidates who wish to appear for CUET 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired university. Again, the same point is being repeated क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग हो सकता है, जो वो परसेंटेज 12th की उनको रिक्वायर्ड है वो अलग हो सकती है। सो बिफोर यू अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी मेक श्योर कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से पढ़ लें for selecting the options from UG programs. The application will be open from 2nd April 2022 to 30th April 2022. Now let us look at the examination structure. It says the examination structure of the CUET UG 2022 will consist of 4 sections. Very important, 4 sections total होने वाले हैं। The first section is section 1A which would have 13 languages. इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। Section 1B would have 19 languages. ये है वो फॉरेन लैंग्वेजेस जो कि कम स्टूडेंट्स लेते हैं।
जैसे कि चाइनीज, जापानीज, ये वो सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें से भी अगर आप चाहें, दिस इज अगेन ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल फॉर दोज हु स्टडी दीज लैंग्वेजेस, ये कंपलसरी नहीं है। तो इसमें से भी आपको ये लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 3 वुड पर्टेन टू द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे अगर किसी को सपोज कीजिए साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन करनी है, सो वो साइकोलॉजी को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकता है। किसी को सोशियोलॉजी में करनी है, किसी को होम साइंस में करनी है, बायोटेक में करनी है, डिपेंडिंग ऑन आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो 27 सब्जेक्ट्स में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अभी इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड सेक्शन would be the general test or the general aptitude test। यहाँ पे रीजनिंग, क्वांट, ये सब चीजों का टेस्ट किया जाएगा। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट these sections. Now let us come to the broad features, I mean the broad overlook at the syllabus. The first section on section 1A, as we talked about, there are 13 different languages. Any of these languages may be chosen. Okay, and then we have section 1B. Here also there are 19 languages, and any other language apart from those offered in section A1 may be chosen. तो 1A में आपने जो भी लैंग्वेज चूज की है उसके अलावा कोई भी एक लैंग्वेज आप इसमें से चूज कर सकते हैं। There will be 50 questions in each of these languages, जिसमें से आपको करने होंगे 40 questions. 40 questions to be attempted out of 50 in each language. Okay, let's look at the question type now. लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज का टेस्ट कैसे होगा। सपोज किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी सिलेक्टिंग एनीवेज, तो टेस्ट किया जाएगा थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। नाउ दीज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, इट कुड बी फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। Also the literary aptitude and vocabulary would be tested through these reading comprehensions. The duration would be 45 minutes for each language that you select. Coming on to the section number 2 now, which is a domain subject. There are 27 domains specific subject. तो 27 subjects आपको offer किए जा रहे हैं। A candidate may choose a maximum of 6 subjects. देखिए confusion मत रहिएगा। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट के लिए जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस वाज स्टेटेड बाय द यूजीसी चेयरमैन हिमसेल्फ डे और टू अगो। डोमेन्स एज डिजायरेबल बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी। सो जो आपके यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाना है, आपको देखना है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, और फिर आपको देखना है कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर डोमेन सब्जेक्ट्स। यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चंस में से कोई भी 40 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर नॉट कंपल्सरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कहाँ से पढ़ना है, सोर्स मटेरियल क्या होगा, क्या 12th से हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कम आएंगे, तो ये डाउट भी जो है एनटीए ने क्लियर कर दिया है। इट सेज the input text can be used for MCQ based questions. MCQs based on NCERT class 12 syllabus only. सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्लास 12 NCERT का सिलेबस कंप्लीट करना है। जो बोर्ड्स का सिलेबस आप अदरवाइज पढ़ते, वही आपको जो है प्रिपेयर करना है CUET के लिए। कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। I will be making a separate video on as to how you can actually study for the boards and CUET at the same time। कोई अलग से प्रिपरेशन करने की आपको इसको जरूरत नहीं है। The time limit for this also would be 45 minutes each for the domain specific subjects. Let us now look at section 3, which is your general test. Again, it will be optional for those students who are applying to such universities जहाँ पे ये required है।
So it says for any such undergraduate program or programs being offered by universities where a general test is being used for admission. तो जहां इसकी requirement है केवल वही लोग इसके लिए apply करेंगे. All of you do not have to appear for it. It is optional. So I would advise you to go through the website of the university or universities which are applying to. उसके guidelines को आप बहुत ध्यान से पढ़ना. उसमें अगर रिक्वायर्ड है जनरलाइज टेस्ट के स्कोर तभी आप इस एग्जाम को दीजिएगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड. नाउ हियर आल्सो देयर विल बी 75 क्वेश्चंस गिवन टू यू, जिसमें से आपको कोई भी 60 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होंगे. दीज क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग which is simple application of basic mathematical concepts, जो कि बहुत ही बेसिक है. आपको ग्रेड 8 से ऊपर का आपको प्रिपेयर नहीं करना है. ग्रेड 8 तक तो सबने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैथ्स तो हमें किए हुए बहुत टाइम हो गया है. तो स्पेशली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो उनके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि डोंट वरी, डोंट फ्रेट आउट. बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स वी वुड बी कमिंग आउट वीडियोस ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश एज वेल. सो आई हैव यू कवर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. इसमें अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी आपको ग्रेड 8 तक बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया है वही आएगा. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. सो अगेन आई वुड बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज ऑन the general test section also. So make sure आप notification button को जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बिकॉज अब फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी वो CUET मोस्टली बेस्ड ही आएंगी. सो मेक श्योर यू डू दैट. द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी 60 मिनट्स. तो 1 घंटे का ये आपका जनरल टेस्ट होने वाला है. इसके बाद कुछ ये पॉइंटर्स हैं जो नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर रही है. वो 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू. इन 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम. और ये जो 19 लैंग्वेजेस हैं जो इतनी कॉमन नहीं होती हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इनमें से भी आप एक लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं. ये है वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं. अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. व्हेन वी हैव बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, informatics practices. We have economics or business economics, whichever is being offered by your school. We have engineering, graphics, entrepreneurship. We have geography or geology. We have history, home science, knowledge of tradition and practices of India, legal studies, environmental science, mathematics, physical education, NCC, yoga, physics, political science, psychology, sociology, वगैरह वगैरह. टोटल ये 27 सब्जेक्ट्स हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू नो कि आपकी पसंद के कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में से आपको देने हैं, एग्जाम में अपियर होना है आपको. ओके. Now there are a few more pointers here. It says a candidate can choose a maximum of any 3 languages. तो maximum आप 3 languages choose कर सकते हैं 1A और 1B में से together. So 13 languages जो है 1A में, और उसके अलावा जो बाकी languages हैं 1B में 19 languages, उसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज तो चूज करनी ही है आपको. 1B ऑप्शनल है. देखिए 1A कंपल्सरी है, 1B ऑप्शनल है, और दोनों में से मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं. वन ऑफ द लैंग्वेजेस हैज चोजन नीड्स टू बी इन लिeu ऑफ डोमेन स्पेसिफिक. इन लिeu मतलब इन प्लेस ऑफ. तो अगर आप जो 3 लैंग्वेजेस अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज इसमें से आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जगह आप उसको चूज करेंगे. मतलब फिर आपको 5 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे, एक वो लैंग्वेज हो जाएगी. दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से. Section 2 offers 27 subjects, out of which a candidate may choose a maximum of 6 subjects. कोई भी 6 आप subjects choose कर सकते हैं. Maximum, again I'm telling you, minimum आपको 1 करना है और maximum आपको 6 subjects जो है
चूज करने हैं। सेक्शन 3 comprises of the general test for choosing languages from section 1A and 1B and a maximum of 6 subjects. Candidate must refer to the requirements of his or her intended university. बार बार नोटिफिकेशन बोल रहे कि भैया प्लीज आप जो अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो पहले उसका आप सिलेबस जरूर देखना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से जो है आप अपने प्लीज सेक्शंस को चूज करना। Then it talks about mode of the test. It would be a computer based test or CBT. टेस्ट पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन होगा, उसकी 4 चॉइसेस दी रहेंगी, आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। मीडियम जो होगा एग्जाम का, अगेन ये भी 30 लैंग्वेजेस में होगा, तो 30 लैंग्वेजेस में से किसी एक को आपको एज अ सब्जेक्ट चूज करना है और एग्जाम भी 30 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन 30 लैंग्वेजेस, जिससे कि क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाएगी। जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। दे कैन चूज देयर रीजनल लैंग्वेजेस नाउ। तो इन 13 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक में आप पेपर अपना दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। द सिलेबस इट सेज, अगेन अभी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं 1A 1B में से, लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 1A और 1B में आप जो भी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे वो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू टेस्ट होगी, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस विच कुड बी फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। ये तीनों तरह के पैसेजेस जो हैं आपको पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो लिटरेरी एप्टीट्यूड है और जो वोकैबुलरी है आपकी उस लैंग्वेज के से रिलेटेड, दैट वुड बी टेस्टेड। सेक्शन 2 जो है आपका NCERT मॉडल सिलेबस, तो ये कंफ्यूजन प्लीज अपनी दूर कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा बुक्स की कोचिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जो आपका NCERT मॉडल सिलेबस है एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। देखिए कितनी अच्छी चीज है कि सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा है। अगर आप एग्जाम्स लें, नीट, IIT JEE जैसे एग्जाम्स लें, उसमें 11th का सिलेबस भी आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन 3 will have all these different sections as we have already talked about: GK, current affairs, mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, ये सब जो है आपका सेक्शन 3 में पूछा जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी। रजिस्ट्रेशन आपको किस पे करानी है? रजिस्ट्रेशन प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज द वेबसाइट जहां से आप खुद को एग्जाम के लिए रजिस्टर करने वाले हैं, cuet.samarth.ac.in। इट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 1st April 2022। सो मेक श्योर आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइम पे जरूर करा लें। ओके एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल होंगे कि कहीं बहुत टफ एग्जाम तो नहीं आने वाला है, कहीं IIT के लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी जो है काफी क्लियरली बताया गया है नोटिफिकेशन में। ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड at the level of class 12th only। तो you don't have to worry at all, सिर्फ क्लास 12th का लेवल आने वाला है, उससे ऊपर नहीं आएगा। जो आपकी NCERT का सिलेबस है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो ही आने वाला है। Students having studied class 12 board syllabus would be able to do well। तो सिर्फ आपको बोर्ड का ही सिलेबस करना है, उसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। You will be able to do well in CUET UG 2022। सो आई होप ये बहुत बड़ी जो एक डाउट था बच्चों के माइंड में, ये अब क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है, क्या लेवल आएगा क्वेश्चंस का। नाउ लेट अस कम टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि हम कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि हम इस बार पता नहीं कैसे स्कोर करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, उनको उस चीज के रिगार्डिंग डाउट्स हैं। तो इट सेज इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12th टू टेक एडमिशंस इन द करंट ईयर आल्सो, then such students would be eligible to appear in CUET UG 2022। मतलब कि अगर पिछले साल जो लास्ट ईयर के क्लास 12 स्टूडेंट है, अगेन ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। इफ योर यूनिवर्सिटी परमिट्स you were in class 12 last year, but if your university permits you to sit for this exam this year, then you would be eligible. So again, this would be decided by your university. Choice of languages and subjects, generally the language or subjects chosen should be ones that student has opted in his latest class,
12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली जो आप अभी करंटली पढ़ रहे हैं उन्हीं को ही आप अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे। Isn't it? It makes sense. However, if any university permits any flexibility in this regard, अब suppose किसी को someone is studying psychology in class 12th, लेकिन उसका मन है कि मैं जो है ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढूं, तो दिस विल डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो आप ये कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अंडर CUET UG 2022 also. So candidates should refer to the eligibility requirement of the central universities. उनकी वेबसाइट पे आपको जाके जरूर चेक करना होगा। मोरोवर, अच्छा एक डाउट और भी है कि व्हाट इफ मेरा जो सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना है वो इस लिस्ट में नहीं हुआ तो? So this also is addressed. It says if the subject to be studied is not available in this list, then the candidate may choose the subject closest to his choice. जैसे अगर मान लो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है लेकिन बायोकेमिस्ट्री लिस्ट में नहीं है तो यू विल गो फॉर बायो। तो जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसका रिलेटेड वो आप जो है चूज कर सकते हैं। Candidates are advised to visit the NTA CUET UG 2022 official website. This is the official website. ये बार बार इसका जिक्र हो रहा है, प्लीज नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। यही वो वेबसाइट है जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आफ्टर 2 अप्रैल 2022 फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो अभी बहुत सारी और अपडेट्स आनी बाकी हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल द NTA हेल्पलाइन नंबर। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर दैट दे हैव गिवन हियर। अगर आपको कोई डाउट है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट you can also email them cuetug@nta.ac.in। तो अगर आपको कोई भी और डाउट है यहाँ पे जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट डोंट वरी, जितने भी और फर्दर अपडेट्स आने वाले हैं CUET एग्जाम को लेके, जो भी और इंफॉर्मेशन आने वाली हैं, I will be making videos on those also so that you remain updated. That's it for this video, guys. Please like, share and subscribe and share it with everyone क्योंकि बहुत ही useful video है। I will see you in my next video. Till then, bye bye.